We are doing quadratic equation. So quadratic equation, quadratic equation. अभी मैंने दूसरा वाला ले लिया है, पेज टेम्पलेट, दिस वन, ओके. Quadratic equation. Okay, as like you guys, I don't know how much you have remembered about the formula. Let's talk about the first formula. Okay, listen carefully. The standard form of a quadratic equation is the standard form that is ax square plus bx plus c equal to 0, जहाँ पे a not equal to 0. Okay, where a, b and c are real numbers. Okay, now root of the root of a quadratic equation. Okay, roots are given by x equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. Okay, where d equal to b square minus 4ac is the discriminant. Okay, so if you have given given a equation, quadratic equation, you know, right? There are two type of in two methods you can solve. One is factorization and another one is to solve a equation, a quadratic equation. And quadratic equation, you can follow below two methods. One is that is called factorization और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. Another one is discriminant method. Methods. Okay, now based on the nature of the roots, what is the nature of the roots? Now what is about the based on the nature of roots, right? Nature of roots, based on the value of d, we can say that if d greater than 0, it has two real roots, and if d equal to 0, it has two, this is two distinct. Okay, distinct मतलब पता है ना, अलग अलग, two equal real roots. If d less than 0, then no real roots. Understood? कॉम्प्लेक्स रूट्स इसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं. अब नंबर 4 पे आ जाते हैं. नंबर 4 पे क्या कहा जाता है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, सो ax square plus bx plus c equal to 0. Sum of
रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज सी बाई ए। ओके, ना फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको बोल दिया जाए कि हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मिंग a quadratic equation, quadratic equation, for that if roots are, if roots are alpha and beta, then x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. Okay, then number 6, method to solve, we have already discussed that factorization, how to do it. You have to, for the factorization we already solved it, and there is another one, the completing the square. Okay, but that is not from your syllabus purpose, so we have to skip that. Now all the formula, if you have remember, I think the below question will not. So you have the that option to zoom in and zoom out your screen, right, when you are doing the class. If you are using a PC or laptop, you can do if you are using Mac, you can use command and plus sign to zoom it, and if you are using Windows, control, or I'm not sure right now, but control, probably control and plus sign. Yeah, touchpad if you are using that what I can say, laptop and all. So hope everyone is clear. Now we're going for the question. Okay, please, the more fast you will do, the more the earlier it will be finished. Okay, so we are starting from the question number 1, and that is, by the way, I am skipping the what we can say, um, that case based questions, because as I have described, right? Also, we have practiced a lot about the case-based question, but also you have to remember that the case-based studies questions are nothing but, if you can clear your concept regarding the chapter, it will not affect you. Okay, just थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट डाल देता है, थोड़ा ज़्यादा सेंटेंस ऐड हो जाता है, that's all. So going for the first question, question number 1, solve 2x square minus 5x plus 3 equal to 0 by factorization method. Factorization. Okay, do it fast and tell me the answer. थोड़ा जल्दी करना है, okay, because already 9. So if you can side by side, you can take your foods also, because we will be probably bit late. Do it fast. Factorization. Okay, we got answer, so we have to go for the solution. Once we got the answer, we will go for the solution. Okay, so here 2x square minus 5x plus 3 equal to 0, यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, find the factor, so that we can say 2x square minus 2x minus 3x plus 3 equal to 0. So यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं 2x x minus 1 minus 3x 1 sorry, is it yeah, no, it should be 3x minus 1 equal to 0.
तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं x माइनस वन एंड 2x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो. सो x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू थ्री बाई टू. जिसका भी x इक्वल टू वन एंड थ्री बाई टू, दैट इज द करेक्ट आंसर. So we are going for the question number 2. Question number 2 is saying that find the roots, okay, find the roots of x square minus 7x plus 12 equal to 0 using quadratic formula. Okay, do it fast. So did I already said this, that happy Onam to all of you guys. मुझे जितना देर मुझे अपने मतलब मैं ट्रेनिंग के दौरान देर आर जस्ट टाइम जहाँ पे मतलब आई वॉज बी लाइक अ गाय जिसे मतलब मैं तो कुछ भी पढ़ाई के लिए वो कुछ भी नहीं करता था स्कूल और कॉलेज में. एंड कॉलेज में तो मैं इंटर्नशिप करने लग गया था, तो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट और नॉट एबल टू इवन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा पा रहा था बिकॉज फ्रॉम द सेकेंड ईयर इट्सेल्फ आई एम डूइंग इंटर्नशिप. But in the college time only I was doing that पढ़ाई कोई भी participate नहीं and all. But once I got the chance कि मैम ने बताया कि so even that's why I have asked ma'am what is Onam. Now everyone is saying that you can Google it, right? So when I'm Googling it, that is not satisfied answer. So मैम भी लाइक ऐसा होता है कि ऐसे साड़ी पहनना जाता है एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट, देयर आर डांस एंड ऑल. सो मैम इज ऑल्सो डांसिंग with us, and even that's was the first time I participate for the dance after the college. No, to dance कहीं पे डांस करने के लिए ना वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. दोस्तों के साथ इजीली हो जाता है, ठीक है. इवन इफ यू कांट डांस स्टिल मैंने अपने एंटायर लाइफ में कभी डांस नहीं किया था. बट देयर वाज अ बर्थडे पार्टी एक दोस्त का था, तो वो उस वैसे. एंड आई सजेस्ट यू गाइस इफ यू वांट रियली कि you want to dance but you are sighing or whatever, you are not able to dance, you don't want to participate, लोग क्या कहेंगे, then you should play the Bhojpuri song. Okay, that is recommended. Okay, Bhojpuri songs. So Bhojpuri song का फायदा ही है, Bhojpuri are like it's not recommended Bihari song. Yeah, example, there are a lot of examples, but if you pronounce that, those are not good. Okay, from the pronunciation, from the meaning, that are so bad, so worst you can say, right? बहुत ही गंदा है. बट जो म्यूजिक होता है वो काफी खतरनाक होता है. मीनिंग में जाओगे तो यू विल बी लाइक हमें तो बस वाइब करना है, राइट? जैसे कि मलयालम में एक सॉन्ग है, दैट इज अ फिल्म फ्रॉम फहद फाजिल जो इल्यूमिनाती का आता है, राइट? इल्यूमिनाते. वो उसमें किसी को चाहिए नहीं, मतलब किसी को घंटा समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, क्या कुछ बोल रहा है, जस्ट डांस. बट इट्स लाइक इफ फहद फाजिल, if every villain is like Fahad Fazil, like that movie, then everyone be like everyone be like अब शादी तो या फिर वो जो बोलते हैं ना कि द एक्ट्रेस और द हीरोइन हीरो से प्यार नहीं करेगी, हीरोइन विलन से प्यार करेगी अगर विलन फहद फाजिल जैसा हो. 4-3 आया है. वाओ, ग्रेट मैन. तो ग्रेट मैन. बाकी सब क्या कर रहे हैं? यू शुड आंसर ऑल्सो. ओके, सो हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है ए बी सी, राइट? तो यहाँ पे ए कितना है? ये है आपका 1, बी है आपका -7, सी है आपका 12. ओके, अब ये फाइंड आउट हो गया, देन यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 12. ओके, दैट्स मीन 49 minus 48 equal to 1. Got it? अब रूट्स निकाल लेते हैं. सो द रूट्स x इक्वल टू
x इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिखा जाता है x इक्वल टू पहला 1 हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाई 2 इक्वल टू 7 प्लस 1 बाई 2 इट्स 4 एंड 1 हो जाएगा ये, तो अनदर 1 होगा कि 7 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3. सो द आंसर इज रूट्स आर x इक्वल टू 4 and 3. ओके, सबका ये आंसर आया है. अगर सबका ये आंसर आया है तो एक बार टिक लगा लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. डिटरमाइन द नेचर. ओके, कुछ नहीं यार, 1 का रूट कितना होता है? 1 का रूट 1 ही होता है ना. यस, वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. डू इट फास्ट. अगर ये चीज हो गया तो वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. बट मैंने जो भी केस इधर केस बेस्ड स्टडी, जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन कराया ना, इफ यू रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज यू कैन प्रैक्टिस ऑल. अगर कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं है, दो इट शुड नॉट बी, बट अगर फिर भी अगर लग रहा है कि कहीं पे मुझे 99% है, 1% क्लियर नहीं है, यू शुड प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन. ओके, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो एटलीस्ट क्वेश्चन कम बना जाएगा. डिटरमाइन एग्ज़ाम, जब मिड टर्म का जो भी एग्ज़ाम होगा, मैं ट्राई करता हूँ कि पूरा चैप्टर से पूरा जो जितना जो टोटल मिड टर्म में जितना एग्ज़ाम जितना चैप्टर आएगा सबका एक बार थोड़ा वो कर लेते हैं. लेकिन कुछ लोग फिर बोलेंगे कि बिकॉज आई एम दैट गाय कि मुझे अभी अभी एटलीस्ट ट्यूशन नहीं चाहिए. ठीक है, मुझे खुद से प्रिपरेशन करना है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे करना चाहिए एग्जाम से पहले या नहीं करना चाहिए. डिटरमाइन द नेचर. लेट्स सी अगर जिसका भी वोट ज़्यादा रहेगा अपन वही चीज़ करेंगे. रूट्स ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. डू इट फास्ट. क्वेश्चन इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है. ठीक है, तो मतलब यूं ही क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, आंसर आ जाना चाहिए. Okay, we are going for the solution. We are going for the solution and solution here. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के लिए अपने को ए निकाल लेना है. ए कितना है 3, बी कितना है 5, सी कितना है 2. राइट, सो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 5² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, दैट इज ग्रेटर देन 0. सो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन होता है देन क्या इसका जो नेचर क्या कहलाएगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, distinct and real roots. Okay, real roots. Okay, great. We're going for the question number 4, and that is form a quadratic equation. Quadratic equation with roots 2 and minus 3. Okay, do it first. I'm not getting answer from everyone. Okay, that's one we answer got. Okay, great. We're going for the solution. And solution is that sum of the roots, right? Sum of roots कितना आया है? 2 plus minus 3, that is minus 1. Product of the roots, that is 2 into minus 3. Okay, that is minus 6. So equation आ जाता है, equation x² minus 1x plus minus 6 equal to x² plus x minus 6. Got it. So this is equal to 0. Understood? Okay, सबका सेम आया होपफुली. ये NCERT का भी है एंड 2024 में भी आया था. ठीक है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी जो क्वेश्चन करा जा रहा है हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 equal to 0 by completing square. Okay, you can solve it by what we can say discriminant no factorization method. So completing square is not part of your syllabus. Do you guys know about the completing the square? Okay, do it fast. एंड देर आर सम पीपल जो कि आंसर तो आ रहा है, सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन आंसर शेयर नहीं कर रहा है। इट्स बेटर कि सॉल्व। चलो एक आंसर आया है, वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर। सो इसे लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से ये निकल जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, और x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से निकल x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 2। ओके, जिसका भी यही दो आंसर आया है प्लीज़ टिक लगा ले अपने क्वेश्चन में, आंसर में। क्वेश्चन नंबर 6 वी आर डूइंग, इफ the roots of x square minus kx plus 9 are equal, okay, equal, then find the value of k. Do it now. चलो एक आंसर आया k इक्वल टू प्लस और माइनस 6। ग्रेट, वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सॉल्यूशन के इक्वल रूट्स मतलब क्या? d इक्वल टू शुड बी 0। ओके, सो सबसे पहले लिखा जाता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस k एंड c इक्वल टू 9। ओके, इतना निकल गया। सो d इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, और यहाँ से ये कह सकते हैं k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, k इक्वल टू प्लस माइनस 6। ओके ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए रेक्टेंगल्स लेंथ is 2 centimeter more than its width. Okay, if the area is 15 centimeter square, find the width. Okay, find the width. Do it fast. क्वेश्चन इतना शॉर्ट है कि इसका आंसर भी इतना शॉर्ट आ रहा है कि हम लोग ऑलरेडी हाफ ऑफ द क्वेश्चन में आ गए हैं। चलो एक आंसर आया है, so according to the question we can say, चलो जब विथ पता नहीं है, लेट x इक्वल टू द विथ इक्वल टू द x सेंटीमीटर, बोथ इज द सेम। सो लेंथ विल बी इक्वल टू x प्लस 2। ओके, अब एरिया क्या पता है?
वी नो दैट एरिया इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू, मतलब विद इंटू हाइट इक्वल टू 15. दिस इज व्हाट गिवन. यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं, राइट. अगर वो चीज़ कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0. यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. सो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट. सो एक्स का वैल्यू होगा 3 एंड माइनस 5. गॉट इट, गॉट इट. अच्छा ये चीज़ एग्जाम में जब करना है इसे ऐसे करना है, ठीक है. फर्स्ट इसे ऐसे करना है कि एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, देन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. दैट मेरे जैसा मत लिख देना. मैं जल्दी करने के लिए इसे ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसा लिख देना. एंड उसके बाद सो द ऐसे लिखना, ठीक है. ये चीज़ याद रहे. गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8, what asking for? Find k such that kx square minus 4x plus 4 equal to 0 has one root. Okay, do it first. विथ का मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है कि नेगेटिव वैल्यू लेना है. So I have to say this, right? Sorry to forget. So negative value can't be the width. So we have to take x equal to 3. Okay? 3 centimeter is the width. This is the answer. Okay? हाँ, जब लेंथ बताया जाएगा तो put the value of the width, then find out the length. किसी ने बताया 5 into 7 is not 15, it is 35. लेकिन 5 into 7 किया किसने? k का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है ना. k का वैल्यू who is asking about which one? k इक्वल, अच्छा यहाँ पे k का वैल्यू 1 है. k इक्वल टू 1. चलो, फाइंडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, यहाँ पे क्या है कि वन रूट मतलब क्या, d इक्वल टू 0, ठीक है. सो सबसे पहले a इक्वल टू k, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4, राइट. सो d इक्वल टू 0 मतलब d इक्वल टू 16 -4. ओके, b स्क्वायर -4 ऐसी, राइट. 16 - 4 इंटू के इंटू 4. सो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं 16 - 16 के इक्वल टू 0, राइट. सो के इक्वल टू 1. अंडरस्टूड. अगर जिसका भी 1 आया है प्लीज टेक इट. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चेक इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हैज़ रियल रूट्स, ठीक है. सो डू इट फर्स्ट. आफ्टर मिड टर्म मैं सजेस्ट करूँगा हर किसी को सैम्पल पेपर खरीद लेना चाहिए, ठीक है. तो इन माई टाइम देर आर सम गवर्नमेंट सैम्पल पेपर, देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने तो अपने टाइम में 4, 5, 6 किया है, और हर एक सैम्पल पेपर में लगभग 30, 40, 50 सैम्पल पेपर रहते थे, ठीक है. मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि
वंस ये जो टेस्ट है, टेस्ट से पहले भी ये स्टार्ट कर देना बेटर है। अगर टेस्ट से पहले किसी ने स्टार्ट किया भी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा टेस्ट के बाद एटलीस्ट हर किसी को 100 या फिर 200 एटलीस्ट सैम्पल पेपर देना चाहिए। यू नो गाइस कि जो भी जेई का पढ़ाई होता है, राइट, यू गाइस नो अबाउट द कोटा, राइट। सो कोटा में पता है क्या होता है, जो होमवर्क दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है हर एक कोचिंग का ये ऑलरेडी फाइनल है कि बच्चे को कुछ आया ना आए, हर रोज 150 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, 150 क्वेश्चन। सो हफ्ते में 1050 1050 हो जाता है, ठीक है। सो इस इतना लेवल, और इधर ऐसा हो रहा है कि मतलब बच्चे से जो नॉर्मल जो होमवर्क दिया जा रहा है वही नहीं हो रहा है, 100 क्वेश्चन हफ्ते भर में सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। और वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन। ऐसा ज्ञान ना अपने पास रख। फिनलैंड में क्या होता है, तू इंडिया में रह रहा है ब्रो, ठीक है, इंडिया में रह के इंडिया में जैसा चल रहा है, फिनलैंड में आईआईटी नहीं है लेकिन इंडिया में है। -3 c = 2। सो यहाँ से ये बोल सकते हैं c = 2। सो d = -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 2, जो कि 9 - 8 = 1, जो कि ग्रेटर देन = 0 है। सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट अब तो मुझे एक पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा। सो देर आर, वो कौन बोलते हैं कि देर आर सम पीपल्स, ठीक है, उनको अभी भी लगता है कि व्हाट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया it is good. I mean, whoever is the current government, he is doing great. They are building some mandir and all, so they even don't care. Bro, you should first care about your food, next your education, then you should care about the religion, okay? सो फर्स्ट, फूड तो सही से नहीं मिल रहा है, हर चीज़ में टैक्स। सेकंड, एजुकेशन सही से नहीं मिल रहा है। इधर मंदिर कितना बन रही है, मस्जिद कितना बन रही है, उसमें सब कोई मतलब पहले आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट जो थिंग्स, एजुकेशन कितना हो रहा है वो चीज़ बताना चाहिए, ठीक है। एज मैंने कहीं पे मतलब जो अभी राइट, इससे पहले जो गवर्नमेंट है बहुत पहले, कि 48,000 करोड़, अभी तो 5 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ है, तब 48,000 करोड़ बजट में पूरा इंडिया में कितना आईआईएम्स आए हैं, आईआईटी आए हैं। अभी एक भी आया है क्या आईआईटी आईआईएम्स? जो भी आए हैं उसमें कोई एडमिशन ही नहीं लेना चाहता। जो न्यू आईआईटी मेरे टाइम में, ठीक है, मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे जो आईआईटी मिल रहा था, उस आईआईटी में मतलब मेरा 16,000 रैंक था, ठीक है, 16,000 15,000 समथिंग, अराउंड 16,000। तो उसके अकॉर्डिंग अभी 22,000 तक एडमिशन हो रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर का अगर बात करूँ तो 16,000 में तब मुझे चाहिए था सीएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और उस टाइम में मुझे मतलब मैं लग रहा था कि मुझे एक ही चीज़, कुछ आईआईटी छोड़ के और बाकी आईआईटी के बारे में पता भी नहीं था। सो एट दैट टाइम नए आईआईटी में लेना मतलब इतना हालत बुरा था, और अभी और भी ज़्यादा बुरा है। सो कहने को तो सिर्फ बिल्ड करना नहीं होता, उसे इम्प्रूव भी करना जरूरी है। तो कहने का ये मतलब कि वो बिल्ड करना ही बेकार है ना। और क्वेश्चन नंबर 10, that's the important. सो दे आर फाइटिंग विथ लाइक दिस कि यार इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं, इंग्लिश इंग्लिश तो अंग्रेजों का चीज़ है। व्हाई यू आर टू यू नो
talking in English, that's mean you're not a good leader. Come on, man. This kind of bullshit, if they are talking about this kind of bullshit, how can we grow? No, no, no. They are trolling some. Let's A and B are two leaders. Okay. So B, if B is growing something, they wants to improve something, you have to know, right? You have to. English is the you can say the official language for the world, right? So it is good, right? You have to learn. But इसका मतलब you don't want to educate them, you don't want to educate your nations, and you are blaming that English is the foreign language, or English is the language of the Angrez, so we can't speak. You are kind of Desrohi or something. It is, this is a kind of bullshit, right? You're not improving your education system, and you are saying that someone is talking in English, that is bad for as a patriot or something. What kind of things they are talking about? And the main thing is that as a Indians, we are the people, we are supporting them, right? जैसे मैंने बताया, फर्स्ट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फूड, एजुकेशन, ये सब होना चाहिए, ठीक है? नॉट सो क्या हो रहा है कि मतलब कितना मंदिर बन रहा है, कितना ये बन रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। पर मंदिर के बिना भी इंसान कर लेता है। इफ़ यू वांट टू प्रे, यू हैव टू प्रे फ्रॉम योर हार्ट, बॉटम ऑफ योर हार्ट्स। Still answer is not came. Why? Do it fast, guys. Let's we should wait for someone who is जैसे लॉ के साथ पढ़ाई करना, वी हैव सम स्टूडेंट्स जो कि लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, दे कैन सम मेक सम डिफरेंस। ओके, okay, we got an answer, let's go for the solution. So solution के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दैट्स मीन d should be greater than 0. Okay, so here a equal to 2, b equal to k, and c equal to 3. Understood? Now d equal to k square minus 4 into 2 into 3. Okay, यहाँ से k square minus 24 greater than 0, and k equal to root under, so k square minus 24 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसे तोड़ भी सकते हैं और इसे ना भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि k लेस देन -2 रूट अंडर 6 और k ग्रेटर देन 2 रूट अंडर 6, राइट है कि नहीं? k का वैल्यू माइनस के लिए अगर लेस देन होता है तो ये वैल्यू काम का नहीं आएगा, राइट? We have to go for the then positive one because d should be greater than 0. Understood? No. How can you say that k equal to 1? Oh, no.
No. Whatever value you'll get for the D, you have to consider according to them. So we're going for the next question. Question number 11. Question number 11. What is asking? क्वेश्चन कुछ नहीं है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर which 2x² प्लस दिस इक्वेशन इक्वल टू हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने का कंडीशन क्या है? d ग्रेटर देन 0. अब जो भी पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला वी गॉट d का वैल्यू जो मुझे मिल रहा है वो प्लस माइनस 2√6 मिल रहा है. सो माइनस वैल्यू तो अपन नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि जो d का वैल्यू वो पॉजिटिव होना जरूरी है अगर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए. सो k का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा. पॉजिटिव 2√6. Going for the question number 11. Question number 11 is asking the sum of squares of two consecutive numbers is 145. Okay, find the numbers. Do it first. The sum of squares of two consecutive number is 145. Find the numbers. Okay. Right now okay, everyone is giving answer. Okay, try to give each and every, even if you are late, try to give the answer with the question number. Okay, so question number इतना है, उसका आंसर ये है. So I got question. Okay, okay. Do it fast. Okay, we are getting answers. So according to the question, let the number be n and n plus 1. Okay, so according to the question, n square plus n plus 1 whole square equal to 145. तो यहाँ से अपन को ये बोल सकते हैं कि n square plus 2n plus 1 equal to 145. राइट. सो यहाँ से लिख सकते हैं 2n square plus 2n minus 144 equal to 0. राइट. सो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं n square plus n minus 2 7s 2 2s. Okay. So there are 15 questions. This is question number 11. We have to solve 4 more questions, then we will finish this class. Okay, so यहाँ से लिख सकते हैं n square plus 9n minus 8n minus 72 equal to 0. So यहाँ से लिख सकता है n into 9 minus 8 into n minus 9 equal to 0. So यहाँ से n plus 9 and n minus 8 equal to 0. So यहाँ से लिख सकते हैं n का जो वैल्यू होगा वो 9 होगा, minus 9 and और एक होगा 8. Though it's a number, we can't take the value of the negative value, so we have to take the n equal to 8. So another one will be
n plus 1, that is 8 plus 1 equal to 9. So 8 and 9 are the 2. Okay, going for the question number 12. Question number 12 is saying solve x square minus 4 equal to 0. Do it fast. With simple factorization. With simple factorization. Factorization. Okay, do it fast. चलो, आंसर सबसे नहीं आ रहा है, आंसर सबसे नहीं आ रहा है. व्हाई आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आंसर क्यों नहीं आ रहा है? एक या दो ही, बहुत ही कम लोग आंसर दे रहे हैं. डू इट फास्ट. एक लाइन का क्वेश्चन है, आंसर है. ओके, एक आंसर मिला है, बट व्हाट अबाउट अदर्स? सो गए क्या ये लोग? लगता है सो गए ये लोग. गोइंग फॉर द आंसर. Simply x equal to x square equal to 4, so x equal to plus minus 4, plus minus 2. Okay, this is the answer. Going by the question number 3. Question number 13. If 1 root of x square minus 6x plus k equal to 0 is 3, find k and the other root. Find k and the other root. Okay, do it fast. Again I am saying, हर कोई आंसर नहीं दे रहा है. प्लीज एवरीवन शेयर योर आंसर्स. ओके, सो के वी गॉट 50. इज इट? चलो, इतना जल्दी तो आंसर उम्मीद ही कर सकते हैं. लेट्स सी. एक रूट दे दिया गया है 3, आधा रूट फाइंड आउट करने को बोला है. सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3, जहाँ पे 9 minus 6 into 3 plus k equal to 0, so k equal to 9. Okay, k का वैल्यू मिल गया है. आई थिंक बहुतों ने आंसर सही दिया है, k equal to 9. ग्रेट. We are going for the next question, and question number 14 it is. Question number 14 में क्या बताया जा रहा है? Form a quadratic equation with sum of roots 5 and product 6. Form a quadratic equation with sum of roots
5 and product 6. Product 6. So equation क्या है? Do it now. Hurry up guys. We have only one question left. जब भी ऐसा लेट हो जाए ना, पेन कॉफ़ी के साथ थोड़ा बहुत स्नैक्स, वाटर बोतल तो साथ में रहना चाहिए, थोड़ा बहुत स्नैक्स भी लेके बैठना. एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ थिंग दैट कि सूरज ढलने से पहले, दिस इज द पीक डाइट. ओके, इफ़ यू वांट टू लिव, अरे अभी हर कोई डाइटिशियन यही बोलता है कि इफ़ यू वांट टू लिव मोर यू हैव टू फिनिश योर डिनर बिफोर सनसेट. सनसेट के बाद कुछ खाना ही नहीं है. इंडियन पीपल्स भी लाइक भाई फिर तो आधी जन. सो इट इज़ भी लाइक कि 144 करोड़ की आबादी में फिर 40 इंसान ही बचेंगे. There was a couple. Okay, there was a couple. They have planned that uh, we have to do diets. Okay, so from class 10th, like you guys, some peoples. Okay, so they have tried. So, we should go for the gym from class 10 or 9th or 8. Okay, so they skip 9th 10th. So they are planning that we have to go for the plus 2. ठीक है, जहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे तो पीयूसी में वहाँ पे डाइट करेंगे. अगेन दैट इज़ फील्ड. कॉलेज में गए हैं, कॉलेज में डाइट करेंगे, वो भी फेल हो चुका है. जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी फेल हो चुके हैं. देन दे गेट मैरिड. ओके, दिस सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, they get married and then they decided that we should after a lot of every marriage, after marriage, always 99% case after marriage, each and the both can gain the weight. Most probably girls gain the weight but boys too. Okay, so उसके बाद they have planned that we have to do diet. So what they decided, just salad. Okay, some may around 6 or 7, evening 7. Okay, evening say they have decided they have one bowl of salad they have taken and they have slept. अब ये इंडियन स्टोमक है राइट, इनसे होता नहीं है. रात के 12 बजे या फिर 1 बजे या फिर किसी ने 2 बजे, 2 बजे उठ के फिर से दे आर कुकिंग फॉर द राइस चिकन करी. देन दे आर. So the best solution is the those people's right. In a recent interview, there is a comedian. Okay, they are saying like कि क्या ही उखाड़ लिया इतना डाइट करके. ठीक है, इतना डाइट करने के बाद भी 60 साल बच रहे हैं, स्ट्रोक आ रहे हैं, जिम में जाके स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है, हार्ट अटैक आ रहा है. सो डाइट करने के बाद भी थोड़ा सा क्यों अपना बॉडी के साथ इतना टॉर्चर करें. वही 70 80 साल 90 साल बच. Let's see. I got the best advice till 30. Eat whatever you want. Okay. After that, skip the sugar. Or there is one thing. Yeah, sugar. White sugar especially. Skip that one. Baki life set hai. So according to the question, the sum of the roots matlab sum of roots
minus b by a equal to 5. Product of roots equal to c by a, that is 6. So the equation will be x square minus 5x plus 6 equal to 0. Remember, this is also in NCERT. Also, this came in 2023. Last question, but not the least. Question number 15. Question number 15. A train travels 360 km at a constant speed. If the speed were 5 km per hour higher, it would take 1 hour less. Find the speed. I need answer from each and every one. This is the last question. But remember guys, if this is the last question, today here we have done most of the question. बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है. एंड जो वर्ड टाइप क्वेश्चन है वो अपन किए ही नहीं. क्यों? ऑलरेडी चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो तब वर्ड वाला क्वेश्चन कर लिया, जो भी जितना मुश्किल से मुश्किल हो सकता था. सो along with this 15 question you have to do practice NCERT and that one also. And POQ तो मिस ही नहीं करना है. Last question, I am looking for the answer from each and every one. Okay. Take your time, but everyone has to be give me the answer. Let's see किसका पहले आंसर आ रहा है. मतलब एक ही क्वेश्चन, पूरा जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया है एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ उसी में से है. चलो आंसर मुझे मिलना शुरू हो गई है. लेट्स वेट फॉर सम others. No, I am waiting for each and every one. That is most of them. 99%. So next chapter, which one? कौन सा चैप्टर किया जाए? नेक्स्ट वाला. Yes, we can do the application of trigonometry also. So किसी ने वो probability या फिर statistics ये सब भूल तो नहीं गए ना? Hopefully. Let's see. Maybe we have to take some classes
without skipping the one day. We are skipping one day, right? So we have to take regular class for some, because if I want to finish all the chapter, I have to do it. Okay, getting answer. Some more, some more answer. I'm looking for some more answer. Do it fast, guys. So next day we will gonna do application of trigonometry. तो फिर रह क्या गया है? प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और क्या? और कुछ खास नहीं है ऐसे. Before join to the gym, you guys should first one thing avoid, and that is cold drinks. Okay. कॉलेज टाइम में हर कोई पिएगा बहुत ज़्यादा, एंड स्कूल टाइमिंग में ऑल्सो, बिकॉज बट बैंगलोर का वेदर वैसा नहीं है कि पीना ही ज़रूरी है. इफ़ यू लिव इन नॉर्थ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दैट इज़ मैंडेटरी, बट स्टिल इट इज़ रिकमेंडेड, डोंट गो फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स. बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ घटिया चीज़ है. अच्छा, दारू या धारू? दारू, हाँ. हाँ, ले सकते हो इफ़ यू हैव दैट कैपेबिलिटीज कि. और देर आर सम पीपल्स, ओके, कि आज जितना चाहे, मतलब डबल चीज़ पिज़्ज़ा, ओके, दे आर टेकिंग डबल चीज़, डबल ट्रिपल 4x 5x चीज़ पिज़्ज़ा दे आर टेकिंग, ओके. देन नेक्स्ट डे, टू काइंड ऑफ पीपल. नेक्स्ट डे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जिम में थोड़ा 2 घंटे और 4 घंटे ज़्यादा दे देंगे, थोड़ा पसीना निकलेगा तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा. और एक पीपल होते हैं कि आज थोड़ा सा 4 घंटे ज़्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि शाम को डिनर में भी तो जाना है, और डिनर में 4x पिज़्ज़ा भी खाना है. मतलब 4x विथ 4x चीज़, ओके. पिज़्ज़ा इट इज़ ओके, फिर भी लोग, पता नहीं यार ये लोग क्या चुल रहती है. मतलब मैं आई थिंक 4-5 महीने पहले किसी ने बताया, मतलब डबल चीज़ किसी ने बताया कि वो ऑर्डर ऐसे कर रही थी कि डबल चीज़, नॉट डबल चीज़ मैम, डबल चीज़ विथ 2x. हम कहा इसका, पहले तो ये चीज़ समझने में मुझे 2 मिनट लग गया, ठीक है. इतना चीज़ रखोगे कहाँ, रखना कहाँ है? दारू, इधर वेजिटेरियन खुद को बोल रहा है, इधर दारू ले रहा है, ओके. अच्छा, दारू इज वेजिटेरियन और नॉन वेज? No, in South people they are, you know, in South people they are like, every time whatever is the party, खंबा. हाँ, वैसे नहीं, कभी लेने नहीं, वैसे भी अपन तो नहीं, मतलब वही, इट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड as per in our family, also religion also. No one has been taken. Maximum you can take that mocktail, okay, not cocktail. सर मतलब हम तो अलग ही लेवल पर हैं, हाँ लग तो रहा है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. आई डोंट नो, गाइस प्लीज गिव मी द आंसर. I don't know why you are taking this time, that much time. So let speed equal to x kb per hour. Okay. So the time will be taken 360 by x. Okay. Now this is the first one. So the new speed will be, according to the question,
x plus 5, then the time will be taken 360 by x plus 5. बस इतना ही करना है यार. 360 by x minus 360 by x plus 5 equal to 1. This is what it is. ओके, अब यही सॉल्व कर दोगे अपने आप आंसर आ जाएगा. होप सबने यही चीज़ किया है, उम्मीद करता हूँ सबने यही चीज़ किया है. सो आई डोंट नो व्हाई एवरीवन इज नॉट गिविंग मी द आंसर, बट यू शुड गिव मी, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं किसी और एक नए चैप्टर में. ओके, एंड दैट चैप्टर विल बी introduction to trigonometry we have done. Okay, is there any doubt? Who has doubts? Okay, so let's see, let's meet again. So this is today is the 5th of September.